Good morning, students. All of you are learning about P block elements, that is unit 7. And in P block elements, we are talking about group 17, that is 7th A subgroup element. We have already studied about general properties of P block of group 17. But really, in this year, that is 2020 examination 2020 board examinations of CBSE, all those portions were deleted. But I have already told you that some properties may be extra also that you should know. Today we will start about the preparation of HCl. HCl means hydrochloric acid, and in gaseous form when HCl is present, then it is called as hydrogen chloride. Aqueous solution of hydrogen chloride is called as hydrochloric acid. Hydrogen chloride, how can you obtain hydrogen chloride? Simple process. सोडियम क्लोराइड, जिसे आप कॉमन साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl गैस बाहर निकलती है। सोडियम क्लोराइड की अमाउंट फिर से जब हम बची हुई मात्रा में रिएक्शन कराते हैं तो फिर से ये Na2SO4 में बदल जाता है और HCl गैस कंटिन्यू बाहर निकलती रहती है। इसे हम एक ही बार में अगर रिएक्शन को लिखना चाहते तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे रिएक्शन लिखा NaCl प्लस H2SO4 HHSO4 के फॉर्म में, NaHSO4 प्लस HCl, ये गैस बाहर निकल रही है, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। Again NaCl is treated with NaHSO4, sodium hydrogen sulfate, and forming sodium sulfate as well as HCl gas is leaving your apparatus. In short, you can express such reaction as such one. To NaCl plus H2SO4 in single step, to HCl, ये दो क्लोरीन जो आपको दिखाई दे रहा है और ये दो हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है एक साथ मिल गया और रिएक्शन में Na2SO4 और HCl गैस ये बाहर निकल गया। इस प्रकार से सोडियम सल्फेट का साल्ट ये है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, जो बाहर निकल रही। तो HCl का आप सिंथेसिस इस प्रकार से करते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है कि when सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद concentrated H2SO4, HCl gas evolves. Now physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप बात करते हैं HCl gas is pungent smelling white colored gas. Pungent smelling white colored gas. Pungent smelling. मतलब तीक्ष्ण गंध युक्त, व्हाइट कलर्ड, गैस। It is soluble in water and aqueous solution of HCl is called as hydrochloric
acid. Any problem? Boiling point 189 Kelvin. That is, at 189 Kelvin it is in gaseous state. And at 159 Kelvin, when you freeze it at 159 Kelvin, then it changes into solid crystal. General properties of HCl, because HCl is acid. General properties of acids are well known. When it is treated with base, corresponding salt is obtained, such as action with ammonia. When HCl is treated with ammonia, NH4Cl salt, ammonium chloride salt is obtained. ये एक्शन विद अमोनिया केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप. Action with sodium carbonate, action with sodium carbonate. जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो ये सोडियम क्लोराइड और H2O एंड CO2 में डिकम्पोज हो जाता है. इस प्रकार से बेसिक साल्ट के साथ HCl की रिएक्शन इजीली होती है. एक खास इसमें बात ये भी है कि जब हम कंसंट्रेटेड HCl को कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिलाते हैं 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 को जब हम मिला लेते हैं, 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, तो इसे एक्वा रेजिया कहते हैं. एक्वा रेजिया को जानते हो और क्या कहते हैं? रॉयल वाटर. Aqua regia or royal water. When concentrated HCl and concentrated HNO3 are mixed in the ratio of 3:1, then such solution is called as aqua regia or royal water. इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान दीजिएगा. इरेक्शन इंपॉर्टेंट है. ये जब कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl का मिक्सचर में रह जाता है तो जो एक्वा रेजिया बनता है अर्थात रॉयल वाटर बनता है, इसमें प्लेटिनम और गोल्ड जैसे इनएक्टिव मेटल भी एकदम घुल जाते हैं. समझ में आया? यानी बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी में आ जाती है इस एक्वा रेजिया में अर्थात रॉयल वाटर में, जिसे कि अम्लराज भी कहते हैं हिंदी में. देखिए, जब ये गोल्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वा रेजिया का, तो इस प्रकार से ये गोल्ड का क्लोराइड आयन
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लेटिनम को HNO3 और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इस प्रकार से प्लेटिनम का क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये डिसॉल्व हो जाता है गोल्ड या प्लेटिनम एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर में। तो पूरा कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। HCl की प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलिए। रिएक्शन को रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके काम करस्पॉन्डिंग साल्ट देता है। HCl के क्या यूज है? HCl का यूज आपने देखा केमिकल रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड बना था, तो अमोनियम क्लोराइड बनाने में होता है। और अमोनियम क्लोराइड के अलावा ये पोटेशियम क्लोराइड बनाना हो आपको, और गोंद को हड्डियों से गोंद बनाने के लिए, जानवरों के हड्डियों से गोंद बनाने के काम में भी कंसंट्रेटेड HCl प्रयोग में आता है। मेडिसिन में और लेबोरेटरी के रिएजेंट के रूप में HCl का यूज होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है, इसका यूज। एक क्वेश्चन पूछा गया है, when HCl reacts with finely powdered iron it forms ferrous chloride and not ferric chloride. Why? It reacts with iron products, produces H2, Fe plus 2 HCl gives us FeCl2 plus H2. Liberation of H2 prevents the formation of ferric chloride. जब हम Fe को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन को HCl के साथ रिएक्शन कराए FeCl2 और H2 बनता है। ये हाइड्रोजन गैस का जो रिलीज होना, लिबरेट होना, ये FeCl2 को फर्दर क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के रेट को घटाएगा ना, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कंपाउंड है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल हो गया ना यहाँ पे। तो ये लिबरेशन ऑफ H2 प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। ये एक्चुअल कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद जो टॉपिक दिया गया है वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन आपके कोर्स से इस साल डिलीट कर दिया गया है। इसलिए अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और इस ग्रुप का लास्ट कंपाउंड होगा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में हम आपको अगले दिन बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।